Okay, so moving towards the last theory topic, before we go ahead with last theory topic, थोड़ा सा हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं एंड दिस रिवीजन इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ओरल. तो अगर आपको याद होगा, इस चैप्टर में यू हैव वेंट थ्रू थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसमें पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, पेयर्ड थे. डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज कैंसलिंग आउट, मतलब एटम के पास नेट डाइपोल मोमेंट नहीं था. आपने जब ऐसे सब्सटेंसेस को एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो दे गेट मैग्नेटाइज्ड टेम्पररीली एंड दे आर रिपेल्ड, they are weakly repelled by the external magnetic field. Then next type was paramagnetic substances. In this case, atoms have odd number of electrons, मतलब कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो अनपेयर्ड रह जाता है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट कैंसिलेशन नहीं हुआ, मतलब एटम के पास नेट डायपोल मोमेंट है. लेकिन in the absence of external field, all these dipole moments are randomly oriented, and जब एक बल्क मटेरियल बनेगा, सब्सटेंस बनेगा, तो रिजल्टेंट वाज जीरो. सो देयर वाज नो नेट डायपोल मोमेंट विद द सब्सटेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. जब आप वीक या फिर स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे, in that case your dipole moments were aligning in the direction of the field and the substance was getting magnetized. But again this magnetism is temporary, because as soon as you remove external field, the substance were losing magnetism. So such substances are called as paramagnetic substances. इस केस में हमने एक एडिशनल प्रॉपर्टी देखा था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में, वेयर susceptibility chi is inversely proportional to absolute temperature. और हमने क्यूरीज लॉ देखा था of paramagnetic substances, where magnetization of the sample was proportional to external applied field and magnetization was also inversely proportional to absolute temperature. इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमको मिला था mz is proportional to b external by t. प्रोपोर्शनलिटी की साइन अगर हटा दोगे तो यू विल बी राइटिंग डाउन a constant of proportionality C. Okay, so this was for paramagnetic substances. Then we spoke about ferromagnetic substances. और ferromagnetic substances में basically हमने ferromagnetic substances को explain किया था on the basis of domain theory. तो domain theory में क्या हो रहा था कि यहाँ पे हर एक एटम के पास नेट डाइपोल मोमेंट है. So these substances are also made up of atoms with odd number of electrons, and atoms have net dipole moment. But in this case, इसमें और पैरामैग्नेटिज्म में एक छोटा सा डिफरेंस था, एंड दैट वाज कि यहाँ पे जो नेबरिंग डाइपोल मोमेंट्स है दे आर स्ट्रांगली coupled, and then they are said to be interacting, and उसको हमने बोला था exchange coupling, right? तो here there are small regions, और इन सारे के सारे small regions में all the dipole moments are oriented in the same direction. और जो common direction था इसको बोला था आपने domain axis. तो this small regions are called as domains. तो all these small regions were called as domains. और ये है domain का wall, domain boundary, this green colored walls. Okay, as soon as you keep this material in a weak magnetic field, strong में तो होगा ही, but weak में ही, what was happening here was all the domain axis were aligning in the direction of the field, right? तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, and ultimately all the domain boundaries were broken, collapsed, और सारे के सारे domains were in the same direction. So the substance goes into highly magnetized state. Good. तो ये था effect of magnetic field on
ferromagnetic substance. Now let us look at what is the effect of temperature. Effect of temperature on ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances. तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा देख लेते हैं. तो वापस आई हैव टू शो यू दिस पर्टिकुलर डोमेन डायग्राम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर बार आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा बिकॉज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस. तो अगेन यू हैव a material ferromagnetic, you have domains, and domains, all the moments in each domain they are randomly oriented. अब थोड़ा सा ज्यादा फोकस चाहिए आप लोगों का बिकॉज सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन व्हाट हैपेंस इन एक्सटर्नल फील्ड एंड व्हाट हैपेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया है. So if I am not applying any external field, which means they are not aligned. So magnetic moments of each dipole, they are not aligned. They are still randomly oriented. External field यहाँ पे ना weak field है ना strong field है. There is nothing. अब आप temperature बढ़ा रहे हो. तो when you increase temperature, what happens is सबसे पहले तो इनमें जो इंटरैक्शन होता है जिसको आपने एक्सचेंज कपलिंग बोला था, इट स्टार्ट्स वीकनिंग. सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द नेबरिंग डाइपोल मोमेंट्स व्हिच आर स्ट्रांगली कपल्ड अर्लियर, दिस कपलिंग इज वीकनिंग. मतलब वो जो इंटरैक्शन है वो वीक होते जा रहा है. और वीक होने के साथ साथ टेम्परेचर की वजह से these boundaries are also breaking down. So what is happening here is, इस केस में कपलिंग वीक हुआ. और देखो why it is important, क्योंकि जब आपने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा था तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में क्यों गए? क्योंकि अगर एक जाएगा तो पहले के साथ दूसरा कपल्ड है वो भी डायरेक्शन चेंज करेगा, दूसरे के साथ तीसरा कपल्ड है वो भी चेंज करेगा, तीसरे के साथ चौथा कपल्ड है वो भी चेंज करेगा, राइट? तो ऑल ऑफ देम वेर समहाउ ओरिएंटिंग इन द सेम डायरेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया. और टेम्परेचर के साथ साथ ऑल दिस आर आल्सो डीकपलिंग, मतलब उनका इंटरैक्शन वीक हो रहा है. इसका मतलब क्या होगा? all the individual dipole moments will be randomly oriented क्योंकि domain walls भी break हो गया because of the temperature. So because of the temperature, two things happens. Number one, domain structures is completely collapsed. Number two, interaction, exchange coupling is also weak. इसका मतलब all the dipoles will orient in random direction. ऐसा कौन से मटेरियल ने देखा था? पैरामैग्नेटिक. मतलब विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दे आर बिकमिंग पैरामैग्नेटिक इन नेचर. जिस टेम्परेचर पे ऐसा होगा, द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्यूरी टेम्परेचर. So the temperature at which there is transition from ferromagnetism to paramagnetism, that temperature is called as Curie temperature. Okay, then आप इसको graphically भी represent कर सकते हो. How do you represent graphically? By the way, you need to know susceptibility, magnetic susceptibility of ferromagnetic substance was diamagnetic की क्या थी? नेगेटिव एंड स्मॉल. पैरामैग्नेटिक की क्या थी? पॉजिटिव एंड स्मॉल. फेरो की क्या थी? लार्ज एंड पॉजिटिव. वेरी गुड. तो लार्ज एंड पॉजिटिव. तो क्या है कि susceptibility for ferromagnetic is large and positive, and for para is
small and positive, and as you increase temperature ferromagnetic is getting converted to paramagnetic, मतलब you will have such a nature of the curve. ये देखो स्मॉल टेम्परेचर पे ससेप्टिबिलिटी हाई है और लार्ज टेम्परेचर पे ससेप्टिबिलिटी लो है, मतलब एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन टेम्परेचर जिसको हमने क्यूरी टेम्परेचर बोला है, मान लो दिस पर्टिकुलर बिलोंग्स टू दैट ट्रांजिशन टेम्परेचर जिसको हमने क्यूरी टेम्परेचर बोला है टीसी। तो टीसी से कम टेम्परेचर पे सब्सटेंस बिहेव लाइक फेरोमैग्नेटिक और इससे ज्यादा टेम्परेचर पे बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक, राइट? सिंपल। जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया दो चीजें हुई, डोमेन स्ट्रक्चर कंप्लीटली कोलैप्स्ड। नंबर 2, जो एक्सचेंज कपलिंग था, जो दो नियरेस्ट डायपोल्स में इंटरैक्शन था वो वीकन हुआ। वीकनिंग की वजह से दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, a real life situation. There are some best buddies, they do everything together, always together. ये क्लास में भी बहुत बार हुआ है। Initially when you started attending classes, I used to see group of 4 to 5 people always together, will come together, will go together, will sit together, strong coupling. With time something happened, someone is coming at some time, someone is sitting somewhere, सेम थिंग। तो जब डीकपलिंग होता है तो ये जो ओरिएंटेशन होता है इसका डायपोल मोमेंट का, इट बिकम्स कंप्लीटली रैंडम। ऐसा तो हमने पैरामैग्नेटिक में देखा था ना। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो गया? पैरा। कब? एट सम टेम्परेचर, और जिस टेम्परेचर पे ट्रांजिशन हुआ उसको बोलते हो क्यूरी टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन क्यूरी टेम्परेचर होगा तो सब्सटेंस विल बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक, एंड उससे कम होगा तो इट विल बिहेव लाइक, राइट? लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म के लिए ससेप्टिबिलिटी वाज हाई एंड पॉजिटिव, और पैरा के लिए स्मॉल एंड पॉजिटिव। तो ससेप्टिबिलिटी का कर्व ड्रॉ कर लो, दिस इज कर्व ऑफ ससेप्टिबिलिटी। दिस टेल्स यू लोअर टेम्परेचर पे हाई ससेप्टिबिलिटी, मतलब दिस एरिया टू द लेफ्ट, इस लाइन के लेफ्ट साइड में मटेरियल इज ferromagnetic, or to the right is paramagnetic, right? But going back to paramagnetism, paramagnetism के लिए अच्छे से समझ लो, paramagnetic के लिए सिर्फ susceptibility is inversely proportional to absolute temperature. तो यहाँ पे to the right hand side you will have one equation, susceptibility equal to some constant which is Curie constant T minus Tc, where Tc is Curie temperature. तो ये जो रिलेशन है वो सिर्फ होगा फॉर टेम्परेचर ग्रेटर देन Curie टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये लॉ, कौन सा लॉ? ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये सिर्फ पैरामैग्नेटिक के लिए है, ना डायमैग्नेटिक के लिए, ना फेरो के लिए। तो ये लॉ कब एप्लीकेबल होगा? जब मटेरियल कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया फेरो से पैरा। तो काई ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C अपॉन T माइनस Tc व्हेन द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्यूरी, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेटर देन क्यूरी टेम्परेचर होगा ओनली देन द मटेरियल विल बिहेव एज इफ इट इज पैरामैग्नेटिक। क्लियर यहां तक? पक्का? सो व्हाट यू हैव लर्नड, so you have to mention all this. Number 1, what have you learned? So when the temperature of ferromagnetic substance is increased, right? Then number one क्या हुआ? Exchange coupling starts weakening. The interaction between nearest dipole moments
starts weakening. Number 2, क्या हुआ था? The domain structures start distorting and finally collapses. So domain walls start distorting. Distorting मतलब उसका shape change होना, and then they finally collapse. They finally collapse. Right? When this happens, when these मतलब ये जो दो चीजें हैं, when this happens, then in that case क्या होगा? All the dipole moments of the material, they are randomly oriented. Then all the dipole moments are randomly oriented, and hence the material shows paramagnetic behavior. क्योंकि आपको पता है ये ऐसा होना चाहिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल में. All the dipole moments are randomly oriented and hence the material shows paramagnetic behavior. Right? तो जिस टेम्परेचर पे ये सब हुआ उसको बोलते हो क्यूरी टेम्परेचर. The temperature at which the material makes transition from ferromagnetism to paramagnetism is called as Curie temperature. तो जिस टेम्परेचर पे ट्रांजिशन हुआ उसको आपने बोला क्यूरी टेम्परेचर. अगर आप अभी ग्राफ प्लॉट करते हो, इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ ससेप्टिबिलिटी अगेंस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, what you will see is, so you will have something like this. So of course there exists a transition temperature, Curie temperature. इस साइड पे सब्सटेंस इज ferromagnetic and here it is paramagnetic. Very good. Also as you know, susceptibility is C upon T minus Tc. लेकिन susceptibility is inversely proportional to temperature only for paramagnetic. So this is for T greater than Tc. Greater than Curie temperature पे ही वो लॉ applicable है. You cannot apply it anywhere else. नहीं कर सकते apply. Good. समझा अच्छे से डिफरेंस तीनों सब्सटेंस का, why domain theory was breaking down in presence of external field and what is happening in as you increase temperature. समझ में आया? Good. So that is the end of theory part. So let us start with numericals. Well, by the way, अगर आपको याद होगा जब आप ये प्रूव कर रहे थे that each revolving electron behaves as if it is a current carrying loop, याद होगा आपको, वहां पे एक इक्वेशन आया था ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के केस में E upon 2me into L. एक्चुअली ये था EVR by 2. एक्चुअली यू हैड दिस एज EVR by 2. फिर आपने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके लिया था सो दैट यू कैन एडजस्ट एंगुलर मोमेंटम. तो यहाँ पे ये जो E by 2me आता है इसको बोलते हो गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. That time I forgot to tell you that this is gyromagnetic ratio, but anyways I told you now it is gyromagnetic ratio. So now example, this is 11.1. there's a misprint over here. 11.1. calculate
द गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन, आपको गिवन दिया है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. You are supposed to find out gyromagnetic ratio, and you should know this. Sometimes it is also, not sometimes, it is also pronounced as gyromagnetic. So gyromagnetic या gyromagnetic ratio is E by 2me. So therefore you can directly solve this question. Simple है. So ये जो ratio है E by 2me, सिर्फ वैल्यू डालनी है 1.6 into 10⁻⁻19 upon 2 into 9.1 into 10⁻⁻31 kilogram. Good. So I pay attention. I will tell you how to simplify these calculations. बहुत सिंपल है. ये 10⁻⁻31 plus 31 minus 19, 10⁻⁻12. तो ये आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻12. बराबर. सही है. ये सही है ना. प्लस है. वेरी गुड. सो दिस इज प्लस. गुड. तो ये आएगा आपके पास 1 जा एंड 0.8 जा. 0.8 अपॉन 9.1. 0.8 अपॉन 9.1. मैं ऐसा करता हूं, इसको 8/9 लिख लेता हूं. 8/9.1. तो ये एक पावर यहाँ पे एडजस्ट हो गया. इट इज 10⁻11. और 8/9, हाउ मच इज 8/9? वैसे इनफैक्ट इससे और भी सिंपल है. हाउ? ये आपने 10⁻11 लिखा है. एक काम करो, इसका एक 0 आप उठा के इसको दे दो. 81/9, 9 राइट. तो ये इट विल बी स्लाइटली लेस देन 9. 80/9.1 will be slightly less than 9. तो एग्जैक्ट आंसर आता है 8.8 into 10⁻10. वेट. सही है. नो प्रॉब्लम. यूनिट्स. E मतलब चार्ज इन कूलम. M मतलब मास इन किलोग्राम. तो दिस इज कूलम पर किलोग्राम. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The region inside a current carrying toroid winding is filled with aluminum having susceptibility 2.3 into 10⁻⁻5. What is the percentage increase in the magnetic field in the presence of aluminum over that without it? पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. If you remember, हमारे पास एक टोरॉइड था, और in case of this toroid there is a winding, and ये जो वाइंडिंग मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें से करंट I फ्लो होगा, और ये I जो करंट फ्लो होगा, इट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एंड दैट इज गिवन बाय मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट इज μ0 Ni. और Ni अगर आपको याद होगा तो आप उसको बोलते हो H, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. इन्होंने क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, पहले केस में जो कोर था वो नॉन मैग्नेटिक था, मतलब ओनली इंडक्शन इज दिस. अब जब आप उस कोर को एल्यूमिनियम का बनाओगे, तो उस केस में एल्यूमिनियम का मतलब मटेरियल का भी कंट्रीब्यूशन आएगा, विच वाज μ0 mz. और अगर आपको याद है तो टोटल, बिकॉज ऑफ द मटेरियल एंड आल्सो द करंट, फाइनल आंसर was mu into h. फाइनल आंसर. क्योंकि ये म्यू था आपका μ0 into μr, और μr आपका था 1 plus pi. So one thing you should know is only with current you have μ0 h, and with magnetic material as the core you have total mu into h.
राइट. नाउ परसेंटेज इंक्रीज, ये परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज एरर, ये सारा आपने 11th स्टैंडर्ड में पहले ही चैप्टर में किया है इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस पुट डाउन व्हाट इज गिवन टू अस. गिवन टू अस इज ओनली ससेप्टिबिलिटी, दैट्स इट. आपको सिर्फ ससेप्टिबिलिटी दिया है और ससेप्टिबिलिटी इज रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, दैट इज व्हाई इट डजंट हैव एनी यूनिट्स. You are supposed to find, यहीं पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या फाइंड करना है. परसेंटेज इंक्रीज, जब भी परसेंटेज इंक्रीज ऐसा कुछ आए तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100. फाइनल मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड विथ करंट एंड विथ मटेरियल कंट्रीब्यूशन, माइनस इनिशियल इज ओनली ड्यू टू करंट अपॉन इनिशियल इनटू 100. ये आपसे पूछा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू यू. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग. देन solution is very simple, very simple, but we need to make a formula in terms of susceptibility. हमको in terms of susceptibility formula चाहिए. तो क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया B is total and total is mu into H. BI is mu 0 Ni, but Ni is H upon BI is again mu 0 H into 100. करेक्ट. H कॉमन निकाल के कैंसल आउट, तो म्यू माइनस म्यू 0 अपॉन म्यू 0 इंटू 100. करेक्ट. बट वेट अ मिनट, बट इफ यू रिमेंबर म्यू था आपका म्यू 0 इंटू म्यू आर, बट म्यू आर आपके पास था 1 प्लस काय. सो म्यू इक्वल टू म्यू 0 प्लस म्यू 0 काय. इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूं मैं. देयरफॉर म्यू 0 को शिफ्ट कर दिया तो म्यू माइनस म्यू 0 इक्वल टू म्यू 0 इंटू काय. राइट. तो अल्टीमेटली यू विल हैव म्यू माइनस म्यू 0 बाय म्यू 0 इक्वल टू काय. इक्वेशन नंबर 2. अब ये इक्वेशन 2 अगर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हो तो यू विल गेट फ्रॉम 1 एंड 2. यहाँ पे था आपके पास टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन माइनस ड्यू टू करंट अपॉन करंट इनटू 100 इक्वल टू म्यू माइनस म्यू 0 बाय म्यू 0, बट दैट हैपेंस टू बी काय. तो आ गया काय मल्टीप्लाइड बाय 100 और काय की वैल्यू है 2.3 इंटू 10 पावर माइनस 5 और ये 100 मतलब 2.3 इंटू 10 पावर माइनस 3%. तो ये आ गया आपका 0.0023%. तो दिस मच इज द इंक्रीज, सो स्मॉल इंक्रीज. तो मटेरियल का कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेरी स्मॉल. ओके. तो आपने क्या किया, आपको पहले तो क्वेश्चन समझना था. सिर्फ इतना ही पूछा है कि पहले सिर्फ कंट्रीब्यूशन था करंट का, अब मैं कोर को भी मैग्नेटिक बना रहा हूं तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा इंडक्शन में. तो फाइनल वैल्यू विथ करंट एंड विथ मटेरियल माइनस इनिशियल ड्यू टू करंट ओनली अपॉन इनटू 100, ये आ गया. बट B इज म्यू H एंड BI इज म्यू 0 H अपॉन म्यू 0 H. H कॉमन निकाल के कैंसल, यू आर एट इक्वेशन नंबर 1. बट वेट अ मिनट, म्यू इज म्यू 0 इंटू म्यू आर एंड म्यू आर इज 1 प्लस काय. तो यहां से आपने म्यू माइनस म्यू 0 बाय म्यू 0 आपको मिल गया काय. तो ये सिर्फ काय उठा के यहाँ पे डाल दिया. तो यू हैव टू नाउ रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला, क्योंकि जेईई नीट में जब क्वेश्चन आएगा ऐसा तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए इट इज ओनली काय इनटू 100. डन, दैट्स इट. Okay, next question. Just a minute, let me zoom it a little bit. Yes. A domain in ferromagnetic iron is in the form of cube of side 1 micrometer. आज का लेक्चर हमने स्टार्ट किया तो we have again went through what is domain.
तो यहाँ पे सिर्फ इतना है कि डोमेन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब एंड साइड इज 1 माइक्रोमीटर। तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ डोमेन इज 1 माइक्रोमीटर। तो L इज 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर मतलब 10 पावर माइनस 6 मीटर। ओके, 1 माइक्रोमीटर दिया है आपको तो 10 पावर माइनस 6 है। आई जस्ट राइट इट डाउन लाइक दिस, 1 माइक्रोमीटर। ओके, estimate the number of ion atoms in the domain। तो जैसे मैंने बताया वहां पे, मैंने कल भी बताया था कि हम दिखाने के लिए 3-4 डायपोल दिखाते हैं, बट दे आर एक्चुअली वेरी लार्ज नंबर। तो अभी पूछा है कि कितने टोटल एटम्स है डोमेन में, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डायपोल मोमेंट and magnetization of the domain। So there are 3 parameters that they're asking you. One, number of atoms. Second, maximum possible magnetic moment. And number 3, magnetization. The molecular mass of ion is 55 gram per mole, and density of ion is 7.9 gram per centimeter cube। एंड ईच एटम, हर एक एटम के पास डायपोल मोमेंट m है, इट इज 9.27 इंटू 10 पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि यहाँ पे सारे के सारे क्वांटिटीज मोर और लेस सीजीएस में है, तो इसको भी सीजीएस में कर लेते हैं। 10 पावर माइनस 6 मतलब 10 पावर माइनस 4 इंटू 10 पावर माइनस 2, करेक्ट। 10 पावर माइनस 6 को मैं लिख सकता हूँ 10 पावर माइनस 4 इंटू 10 पावर माइनस 2, but 10 पावर माइनस 2 मीटर इज 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ इज 10 पावर माइनस 4 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड क्या क्या करना है देख लेते हैं। हमको फाइंड करने के लिए बोला है फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर 2 मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, नंबर 3 मैग्नेटाइजेशन। ओके, 3 चीजें पूछी है ना, नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम पॉसिबल डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटाइजेशन। तो विच फॉर्मूला or formulae we will be needing? Number 1, how do you find out number of atoms in general if molecular weight is given to you? Do you remember formula for number of moles? Number of moles is number of atoms or molecules upon Avogadro number, and this is equal to mass upon molecular weight। आपके पास कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये डायपोल मोमेंट है और वो मास है, तो मैं इसको m डैश बोल देता हूँ। नहीं तो बोलोगे ये मास, दिस इज नॉट मास, दिस इज डायपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम। ओके, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। देन मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो ओके। नंबर 2, अब मुझे एक बात बताओ, इट्स अ सिंपल थिंग, हर एक एटम के पास अगर 9.27 इंटू 10 पावर माइनस 24 डायपोल मोमेंट है और मेरे पास ऐसे 200 एटम्स है, तो व्हाट इज टोटल? 200 इंटू दिस वैल्यू, मतलब मैक्सिमम डायपोल मोमेंट विल बी नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच एटम। तो पहले केस से नंबर निकालना पड़ेगा, तब दूसरा मिलेगा और तब तीसरा मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन कैसे डिफाइन करते हो आप? टोटल नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब बेसिकली आपको मैक्सिमम डायपोल मोमेंट को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज लिंकिंग पहला नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा नहीं आएगा। दिस इज हाउ इट इज, यू हैव टू सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। ओके, तो let us solve. Number 1, n by na is equal to m dash by m। तो n is equal to m dash by molecular weight na, but mass तो दिया नहीं है, मास तो नहीं दिया है, बट डेंसिटी भी है और वॉल्यूम फाइंड कर सकते, क्योंकि क्यूब बोला है और क्यूब का एक साइड दे दिया। तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब?
L cube side into side into side. So but density is mass per unit volume, and therefore mass is density into volume, and therefore N is, put this here, density into volume by M into Na, and volume is nothing but L cube. Right? Now you know everything. Density, you have 7.9 in CGS units, right? Gram per centimeter cube. Length 10 power minus 4 सेंटीमीटर. मैं सारे के सारे रख रहा हूं सीजीएस में, तो सीजी, क्योंकि अल्टीमेटली तो नंबर है, नंबर तो नंबर है, उसको फर्क नहीं पड़ता सीजीएस है कि ऐसा है, राइट? तो ये नंबर मिलेगा. तो एल क्यूब 10 पावर माइनस 4 का क्यूब इंटू एनए. एनए की वैल्यू याद है क्या? 6.02 इंटू 10 पावर 23. कभी कभी some students do write this as 6.6 into 10 power minus 34, वो Planck's constant है, और 10 power minus 34 cannot be number of atoms or molecules. तो number of atoms or molecules के लिए ये power positive होता है, पता होना चाहिए. Divided by what is m? 55 ना? क्या बोला है? 55. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. So to solve this, this is 10 power minus 12 or 10 power 23. 23 minus 12, 11. 10 power 11. 8 into 6. 8 into 6. 48 by 55. Roughly बता रहा हूं मैं. 48 by 55. Approximately. Okay. 10 power 11 ना, 11 आया था ये, 10 पावर 11 आया था ये. गुड. ओके, तो दिस इज स्लाइटली लेस देन 1 into 10 power 11. So if I am not wrong, it is something 0.96 ऐसा कुछ आता है ये, into 10 power 11. So values you have to verify, but as far as I remember, otherwise I have to calculate again. और होता भी है, क्योंकि इसको 54 मान लोगे अगर, तो 7 जा, I mean of course 6 8 जा and 6 9 जा, 8 by 9, that is 8 by 9 is 0.9 something. तो ठीक है, तो ये 0.96 into 10 power 11 मतलब 9.6 into 10 power 10 ऐसा कुछ आएगा. बट आई एम टेलिंग यू अगेन, कैलकुलेशंस आप एक बार वेरीफाई कर लेना. रफली इतना आएगा अप्रोक्सीमेटली. ओके, देन ये नंबर मिल गया. नंबर का यूनिट नहीं आता, यू डोंट राइट यूनिट. ऑफ कोर्स दिस इज नंबर पर यूनिट वॉल्यूम कुछ होगा, वो ठीक है. देन व्हाट एल्स, क्या पूछा? और सेकेंड नंबर में मैक्सिमम डायपोल मोमेंट. Maximum dipole moment will be number present in that domain into m. So 9.6 into 10 power 10 into m. m की वैल्यू कितनी दी थी? 9.27. 9.27 into 10 power minus 24. ओके, तो ये 10 पावर minus 14 और 10 into 10 100. 10 पावर minus 11 minus 12 के आसपास आएगा. This one, no need to convert. No need to convert. Why do you want to convert? Wait a minute. Good, but you have to know this. ये जो नंबर है ये पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि डेंसिटी आपने लिया है किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो n इज पर सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज नंबर पर सेंटीमीटर क्यूब. और m, हाँ अच्छा, तो यू आर टेलिंग मी दैट ये जो m है ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. हाँ ठीक है, फिर कर लो सेंटीमीटर में कन्वर्ट. व्हाट इज 1 मीटर इन सेंटीमीटर? 1 मीटर इन सेंटीमीटर इज 100 ना. 10 पावर 2 उसका स्क्वायर 10 पावर 4. तो यहाँ पे 10 पावर 24 की जगह पे 10 पावर minus 20. गुड, तो पुट 10 पावर minus 20. हो गया कन्वर्ट. गुड, सेटिस्फाइड.
डन, वेरी गुड। तो यहाँ पे सिर्फ एक 10 पावर -20 कर देना, बिकॉज यहाँ पे एम्पियर मीटर स्क्वायर था, हमने एम्पियर सेंटीमीटर स्क्वायर कर लिया। दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है, अब बाकी तो कैलकुलेशंस यू आर सपोज टू डू, उसको आपको करना पड़ेगा। मैं रफली बता देता हूँ, ये 10 पावर -10 और ये 10 और ये 10 100, तो 10 पावर 2 और ये 10 पावर -10, तो 10 पावर -8 के आसपास आएगा। ओके, well I have done that calculation, we'll check it again, don't worry, or that is what you have to do. Then अब बचा इसका तीसरा एंड लास्ट पार्ट। ओके, तो क्या फाइंड करना था? और मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन क्या आएगा आपका? mmax अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आपके पास 10 पावर -12 सेंटीमीटर क्यूब है ही, और ये भी आप फाइंड करोगे। सो वी कैन जस्ट क्विकली चेक दिस नंबर्स। ओके, सो इफ यू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशन, एग्जैक्ट, मैंने आपको ये अप्रोक्सीमेट बताया, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो इन दैट केस you will get exact calculations किए तो you will have this as 8.56 into 10 power 10 per centimeter cube. Okay, this is what you will get, n value, and if you substitute that n value over here, so this is 8.56, तो ये आ जाएगा 9 into 9 roughly 8 into 10 power 5, 80 into 10 power -10, convert कर लो, and then you will get a value over here 10 power -9. 80 10 power -10 बराबर है, this is correct, no issues. 8 मतलब 9 into 9 81, 81 को मान लिया 80, 80 into 10 power -10, तो 80 into 10 power -9, correct है. So this is correct. This is in which units? CGS, और CGS में है, okay? तो CGS units में है. And then if you substitute this value over here, क्योंकि this is simple now, क्योंकि ये आ गया आपका 8 into 10 power -9, ये आपका 10 power -12 सेंटीमीटर क्यूब में ऊपर गया, तो 8 into 10 power 3. Good. तो मैग्नेटाइजेशन इज दिस, यूनिट्स आप खुद लिख लो. So that's it for today.